हेलो। आप सोच रहे होगे मैं ये धोती पहन के यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ओनम का ओकेजन है। आई गॉट इनवाइटेड एट वन ऑफ माई गुड फ्रेंड एंड सब्सक्राइबर, जिनसे मैं साल पहले मिला था, 2 साल पहले मिला था कोंडवा में, मैंने वो शूटिंग दी रमज़ान सीरीज़। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम हेयर इन देयर होम। बहुत प्यारा घर है इनका। यहाँ पर इन्होंने जो ओनम में बनती है प्योर वेजिटेरियन जो सारी चीज़ें होती हैं, ओनम साद्या जिसे कहते हैं, वो बनाया है। आज हम वही खाने वाले हैं एंड आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट दिस फेस्टिवल। और यहाँ का जो टेस्टी फूड है इनके हाथ का बनाया हुआ होम कुक्ड, वो हम खा के देखेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो इनका घर जो है वो रो हाउस है, इट्स नॉट लाइक फ्लैट। काफ़ी दूर है ये, लगभग विमान नगर एरिया है, पीछे एयरपोर्ट है जैसे उसके पास में ही है। बहुत ही प्यारा घर है। इन्होंने पूरा डेकोरेशन करके रखा है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं इन्होंने, पैशन फ्रूट आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते तो वो फ्रूट कुछ इस तरीके का दिखता है, उसके अंदर का पल कुछ इस तरीके का रहता है। इसका भी पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है, देखो इसका ये कच्चा फल है, कुछ इस तरीके का दिखता है जब ये कच्चा रहता है। तो अभी इनके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनका घर कैसा है। और उसके बाद जो सारा है, जो मेरे दोस्त हैं, वो इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। Basically, there's a small story why we celebrate Onam. There was a king called Mahabali, and he was quite, powerful, and he was very proud of himself. He had conquered most of the places, and the gods decided to teach him a good lesson. So they sent Vanam, that is Lord Vishnu comes in that avatar of a Brahmin boy, a short Brahmin boy. King Mahabali invites all the people in his town for celebration. This Brahmin boy also visits, and he didn't have anything to give him, but he asked this Brahmin boy, what do you want? So the Brahmin boy tells him, I want only 3 steps of land. So he was like, 3 steps, bolo to like, 3 steps is like something very less for him. So he said, okay, what you asked, I'll give you. This Brahmin boy, since he was an avatar of Lord Vishnu, it's a myth. So he becomes a huge giant, like in a good way, okay? And the first step, he covers whole of the universe. The second step, the whole of earth. So third step, technically, he didn't have any other place. So this King Mahabali, he steps down and he goes on his knee and tells, you can keep the third step on my head. So when he keeps the third step on the King Mahabali's head, King Mahabali comes down to his hometown country or homeland, which is Kerala. So Onam is mostly celebrated in the region of Kerala. And he comes to see his people, how they are, what they are going through. He tells, when I come and see my people, everyone should be happy, they should be all rejoicing, no one should go through poverty and all. So when he visits, nowadays King Mahabali is described like a tall, huge man with a big tummy and an umbrella and all. He's visiting very cool, and he visits each home, and in his welcoming, this Onam Sadhya is being prepared, mostly veg, most of the time. In Kerala, Onam is being celebrated by all the religions. There's not only specific religion. By Christians, Hindus, Muslims, everyone come together and celebrate Onam together. And now where there is a Malayali, there is Onam. So that is a small story of why Onam is being celebrated. It's a harvest festival for all the Malayalis. ये इंची बोलता है। इंची बोला तो मलयालम में इंची और अदरक से बना रहे हैं। ये नींबू है, नींबू अचार है। पचड़ी, पचड़ी बोला तो बोपला से बना रहे हैं। पचड़ी, पिकल्स, अचार। मैंगो से बना रहे हैं। मैंगो से कड़ू मांगा बोलता है मलयालम में। तोरन बोलता है, बीन्स का मिक्स है। और ये कैबेज का दूसरा एक तोरन बोलता है, पिकल्स। और खिचड़ी है, कुटकरी है, अवियल, बिड़कवरटी, कुटकरी बोलते हैं उसको भी। दाल, पपड़, दाल में पपड़ मिक्स करके खाना खाता है। और सेकंड थिंग, ये उसका बाद खाना होने का बाद ये सांबार डालता हूँ, डाल के चावल मिक्स करता हूँ। उसका बाद कड़ी बोलता है, दही में बनाते हैं कड़ी, वो कड़ी मिक्स करके खाता है। लास्ट में रसम डाल के और चावल खाता है। अड़ा प्रदमन तो फर्स्ट क्वालिटी अड़ा प्रदमन बोला तो बहुत फेमस है हमारा। वो कोई पपड़ मिक्स करके खाता है, कोई अचार मिक्स करके खाता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, एकदम टेस्टी है। टोटल आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतना आइटम्स है हमारे पास। हमारा ओणम, हैप्पी ओणम। टोटल 22 आइटम्स है। तो अभी हम थोड़ा इनका घर देखते हैं, सारा जी का। बहुत ही बढ़िया घर है, रो हाउस जैसा ही बनाया हुआ है। आजकल पुणे में ज़्यादातर जब हम ज़मीन छोड़कर फ्लैट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, दे हैव क्रिएटेड रियली ब्यूटीफुल होम। ग्राउंड फ्लोर से हम ऊपर आ गए हैं, पीछे भी पूरा खुला हुआ है। बट द मेन अट्रैक्शन इज़ दिस, लुक एट दिस। आजकल ऐसे कहाँ मिलता है एरिया कि आप बैठ के इतने सारे लोगों को बुलाकर
यू कैन हैव फूड। तो हम अभी ऊपर हॉल में हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। देखो खाने के लिए पीछे टेबल है जहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जो सारा जी हैं उनके बेटे का भी बर्थडे है, सो यू कैन सी दैट हैप्पी बर्थडे रिटन देयर, सो यू कैन से हैप्पी बर्थडे इफ़ यू वांट। जो खाना खिलाया जाता है उसे केले के पत्ते पे ही खिलाया जाता है। साउथ इंडियन में ये तो एक ट्रेडिशन है। यहाँ पर देखिए केले की पत्तियाँ रखी हुई हैं, इसी पे हम खाना खाने वाले हैं। मुझे हमेशा से ट्राई करना था, चेन्नई में था तो मैं सोचा था मैं और मेरा फ्रेंड कि हम पहनेंगे। टाइट टाइट। अच्छा ऑल गुड। निकलेगा तो नहीं ना? नहीं निकलेगा तो अंदर सेफ्टी के लिए है। अब खाना खाने का टाइम बिल्कुल हो चुका है क्योंकि अब मैं दिख भी एकदम अन्ना जैसा रहा हूँ। एंड नाउ दिस विल बी बेटर राइट, हैविंग like wearing the traditional outfit. I can feel it right, like wearing the traditional outfit and also having the food. मज़ा आएगा। केले की पत्ती सबसे पहले ऐसे बिछा दी जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ रहता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स बनाते हैं। तो बेसिक 25 तो आइटम्स होता ही है। अच्छा, तो ये जो है ये इस तरफ पॉइंट करेगा। हाँ, ये साइड है ना, लेफ्ट में इधर अपन राइट साइड दिस वन। ओके। तो केले के पत्ते पे कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें दे दी जाती है। राइस को इस दाल के साथ खाना है जिसमें पापड़म को क्रश करके हम डालेंगे। आई विल जस्ट कीप हाफ ऑफ द राइस सेपरेट। मिर्ची भी यूज़ होती है, वो अलग होती है, कुंतूर चिली बोलते हैं इसको। बहुत अच्छी लगती है, सांभर और रसम में से को डालते हैं तो अलग फ्लेवर होता है इसका। बिल्कुल क्रीमी और रिच लग रही है कि इसमें नारियल भी है तो नारियल का भी एक टेक्सचर आएगा आपको। ये जो राइस है ना, ये केरला वाले राइस हैं, गोल गोल होते हैं, इसका भी टेक्सचर खाने में अलग आता है। एक्चुअली राइस बोले तो केरला में यही खाया जाता है, ट्रेडिशनल वे में खाते हैं। इसको क्रश करेंगे ऐसे, जिस तरीके से मिक्स करके वाकई पापड़ से एकदम अलग फ्लेवर आता है। अब इसे थोड़ा चटकारा बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की चटनी और अचार है। ये जो है इसे अदरक से बनाया गया है, इस पर फ्लेवर आ रहा है बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सा। दिस इज़ पिकल मेड फ्रॉम बड़े वाले नींबू। क्रंची है, पूरा गला नहीं है, पर कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। समझ लीजिए आपने नींबू को काट के खाया है और नींबू एकदम अभी अपनी जो खटास है उसे छोड़ चुका है। ये मैंगो और लहसुन का पिकल। इस सब्ज़ी को थोरन बोलते हैं, कैबेज से बनता है। इसमें गाजर भी नज़र आ रहा है। नारियल जो है वो लगभग हर सब्ज़ी में है। दैट इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट विच इज़ यूज्ड इन द कुजीन ऑफ केरल। बीन्स और नारियल से बनी हुई सब्ज़ी। नारियल हर एक चीज़ को ना मस्त क्रंच देता है। कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी था, चेन्नई गया था तो मुझे नारियल खाना पसंद नहीं था, बट आई वॉज रॉन्ग। यू शुड ट्राई इट, देन ओनली यू विल गेट मच मोर लीन टूवर्ड्स द टेस्ट। तो दिस इज़ मेड फ्रॉम प्लांटेन्स, कच्चा केला होता है उससे बनाया गया है। और इसमें जो काले वाले चने होते हैं वो हैं। अगर आलू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं ना किसी सब्ज़ी में, पुट केला। कल मैंने कबाब बनाया था, वो भी बहुत बढ़िया बना था। अब ये आप देखिए किस तरीके से हेल्दी जो चीज़ें हैं उसे भी रखा गया है। ये बीटरूट है। ये जो सांभर वाला कुकुम्बर होता है ना, तो दिस टेस्ट लाइक कड़ी और रायता के बीच का है। जो कुकुम्बर है वो बर्स्ट होता है मुंह में जाके। दिस इज काइंड ऑफ अ बीन्स जिसका फ्राई है। इसमें भी नारियल है बट डाइसेस है छोटे छोटे। ये अवियल है, लगभग सभी सब्जी मिलाई जाती है। ओनम का जो बहुत ग्रैंड वे में प्रिपरेशन होता है उसमें इस सब्जी का होना ज़रूरी है। विदाउट दिस यू कैन नॉट जस्ट से दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ साध्या, राइट। नारियल की वजह से अच्छा टेस्ट आ रहा है। हर सब्जियों का क्रंच और फ्लेवर है। इसमें मुनगा भी है, सो दैट गिव्स इट लिटिल बिट आयरनी टेस्ट। बचे हुए राइस को हम सांभर से खाएंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस सांभर, दिस इज़ द ओरिजिनल सांभर विच यू विल फाइंड इट रियली टफ टू प्रिपेयर, क्योंकि ये जो जानता है वही बना सकता है। हम इसको बनाते हैं तो इमली डाल देते हैं, इतना इसमें कितना सही फ्लेवर है। हल्की सी भीनी सी खटास है इसमें। इट्स क्रीमी। राइस के साथ सांभर खाते हैं बिकॉज विदाउट दैट यू कैंट से दैट यू हैड साउथ इंडियन फूड। तो ये जो है ये कड़ी है, सांभर वाला कुकुम्बर ही डलता है ना, इसमें नारियल भी डलता है, दही भी रहती है। सो इट्स काइंड ऑफ साउथ इंडियन वर्जन ऑफ कड़ी। दही उसकी वजह से खटास तो आ ही रही है, बट दैट कोकोनट इट्स गिविंग इट अ रियली गुड टेक्सचर। इट्स अमेजिंग। लेट्स ट्राई दिस विथ रसम विच इज़ अ रियली क्लोज कजिन ऑफ सांभर। बट ये पतला होता है और इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। पानी पूरी जो होती है ना उसके पानी के जैसा रहता है, बट इट हैज़ 100 टाइम्स मोर फ्लेवर देन दैट। रिफ्रेशिंग। मेन धनिया जो होती है और टमाटर, ये इसका मेन टेस्ट देता है, और इमली। इट्स रियली नाइस। तो ये पायसम है जो इसमें गुड़ रहता है, इसलिए ऐसा होता है कलर इसका। गुड़ और घी, गुड़ घी। और आड़ा बोल के हाँ। है। आड़ा, गुड़, घी। अच्छा, तो इसमें ये पूरा कोकोनट मिल्क। ओह, तभी इतना अच्छा फ्लेवर है। इसमें ये पापड़म डाल के खाएंगे, तो मिक्स कर लेते हैं। छोटे छोटे नारियल के टुकड़े भी है इसमें, और पापड़म के साथ सच में अच्छा लग रहा है खाने में। टेस्ट अलग आ गया कि नहीं? और कोई हाँ। बनाने के साथ भी खाता है। बनाना तोड़ के इसमें डाल के हाँ। मिक्स मैश करके। मैश करके। वाह। तो हम बनाना के साथ भी खा के देखेंगे।
टुडे आई लर्न न्यू वे टू ईट द पायसम. बहुत बढ़िया लग रहा है. बट मेरे हिसाब से आपको पापड़म डाल के तो एक बार ज़रूर खाना चाहिए. बहुत ही अलग लगती है. सो दिस वॉज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. बहुत ही अच्छा लगा खाना खा के भी. और आप लोग के घर में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक परिवार के मेंबर जैसे ट्रीट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब नेक्स्ट आप लोग मेरे यहाँ आओगे फॉर बिरयानी. अगर आपको मौका मिलता है किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाने का जहाँ पर केरल का फूड मिलता है, सो एक बार ज़रूर ट्राई करिए. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड फुलफिलिंग एट द सेम टाइम. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. रिटर्न तो करो. Nothing, so many for you, yaar. ले लो.